Good afternoon, everyone. Today we start a Modi method. Okay, modified distributed method. Okay, this is the transportation problem which is given, which is solved by WAM method. Okay, now we have to check the optimality of that transportation problem. Okay, we have to check the optimality of that solution. For that, before start the optimality test, we have to check the Riem condition. What is Riem condition? The total number of supply is equal to m plus n minus 1. Okay, if it is equal to, okay, if it is both, if both are equal, then it is called Riem condition. Okay, so it is non-degenerate. So here we check m plus n minus 1. M means total number of row 1, 2 and 3, column 1, 2 and 3. So 3, total number of column, that is n, that is also 3 minus 1. So what is equal to 5? And the allocations is 1, 2, 3, 4, 5. So is equal to number of allocations. Okay. So the solution is non-degenerate. Okay. So we are going for optimality. For that, in Modi method, what is step 1? Step 1 is find out the value of ui and vj. How to find the value of ui and vj? So the formula is Cij is equal to ui plus vj. Okay. Now I is stand for row and j is stand for column. Okay, means if we write C12 means U1 plus V2. Okay, C12 means which cell? So first row, second column, this cell. Okay, now we find the value of ui and vj, which is so simple. So this ui and vj is only for occupied cell. Okay, remember this cell is ui and vj is find out for only occupied cell. That is first again we write ABC, here we write ui 1, okay, and here we write vj. Now how many cells are occupied in this problem? 1, that is 50, here there is 90, and here it is 250, again it is 45, and here it is 50. Okay, so now what is the first condition? That is a simple way. If in any row or column has maximum allocation, then write that 0. ओके, यू और वीजे फाइंड करने के लिए हमें पहले रैंडमली किसी एक को 0 ले लेना है. तो 0 ले लेने का एक सिंपल वे है कि जहाँ पे भी मैक्सिमम अलोकेशंस है वो आपको 0 कर देना है. तो हियर देर आर 3 allocations, so write here 0. So we get the value. This is our V1, this is our V2, this is our V3, this is our U1, this is our U2, and this is our U3. Now we get the value here 0. Now by the use of this, we have the value of U1, U2 and U3. Okay, so here 50 minus 0, so we can write here 50. 90 minus 0, we write here 90. 250 minus 0, we write here 250. So we get all the value of U1, U2 and U3. Okay, now we find the value of V2 and V3. Here we have this allocated value, allocated cell, and the cost is 50. So Cij is equal to 50 and Ui is equal to 250. So subtract this. Okay, 50 में से 250 को subtract करना है. Then जो भी आंसर आएगा, this is of V3. So 50 minus 250 is minus 200. Here 45 minus 90. So you get the value of V2. 45 minus 90 कितना होगा? Minus 45. So you get the value minus 45. Understand? Okay, now this when we find out all ui and vj, then we have to find out the value of step 2
that is Dij. Dij is also known as VCE. Now what is the formula of Dij? That is Cij minus Ui plus Vj. Okay, so here we find the value of Dij. A, B, C. And Vj. Okay, now this Dij is only for unoccupied cells. Okay, this Dij is only for unoccupied cell. So how many unoccupied cell? 1, 2, 3 and 4. So write the value. So what is the value? Here it is 30. Second value is 220. Third value is 170. Fourth value is 200. Okay, these are unoccupied. And what is your Ui? 50, 90, 250, and here 0, minus 45, minus 200. Okay, now we start the find Dij. ओके, यहाँ पे पहले फाइंड करना है, तो ये दोनों का एडिशन करेंगे, मीन्स ui प्लस वीजे करेंगे. 50 माइनस 45 प्लस 5, 30 माइनस प्लस 5 प्लस 25. यहाँ पे जाएंगे, ये दोनों का एडिशन करेंगे. 50 माइनस 200 कितना आएगा? माइनस 150. 220 माइनस 150 कितना होगा? 220 माइनस 150. ओके, सो वो कितना आएगा आपका? प्लस आएगा 220 प्लस 150, सो 370. ओके, नाउ हम लोग जाएंगे नीचे के सेल में, यहाँ पे आएंगे 90 माइनस 200. सो कितना होगा? 90 माइनस 200 माइनस 110. माइनस 110 मीन्स 170. यहाँ पे देखते हैं, अगर 170 माइनस 90 प्लस माइनस 200. ओके, सो ये कितना हो रहा है? 170 माइनस 110. सो ये कितना होगा आपका? प्लस 280. ओके, सिमिलरली हम लोग जाएंगे ये सेल में. सो 250 माइनस 45 वो कितना होगा? मीन्स Cij आपका कितना है? 200 माइनस आपका Ui कितना है? 250 प्लस आपका Vj कितना है? माइनस 45. ओके, सो ये कितना होगा? 200 माइनस 250 माइनस 45 तो कितना होगा? 205. तो ये कितना आएगा आपका? -5. सो यहाँ पे आपका Dij आ रहा है -5. मीन्स आपका जो सारा Dij है वो पॉजिटिव नहीं है, एक Dij है जो आपका नेगेटिव है. कौन सा Dij नेगेटिव है? ये वाला. ओके, ये Dij आपका नेगेटिव है. सो यू हैव टू क्रिएट अ लूप. ओके, आपको एक लूप जनरेट करनी है. वो लूप कहाँ से कहाँ पे जाएगी? तो ये जो लूप है ऑक्यूपाइड सेल से होते हुए वापस यहाँ पे खत्म होनी चाहिए. मीन्स वी हैव टू क्रिएट अ क्लोज लूप. ओके, क्लोज लूप का कंडीशन क्या है कि वो कहीं से भी पास हो सकती है, लेकिन उसका जो टर्न होगा, उसका जो मोड होगा वो ऑक्यूपाइड सेल पे ही होना चाहिए. ओके, सो यहाँ पे देखो, हम लोग पीछे जाने से पहले एक बार देख लेते हैं. आपका ये सेल में नेगेटिव Dij आया है, तो आपको यहाँ से यहाँ पे एलोकेशन से, यहाँ पे एलोकेशन से, यहाँ पे एलोकेशन से, तो आपका एक ऐसा क्लोज लूप ही बनने वाला है, सिंपल. ओके, सो वी आर क्रिएट अ क्लोज लूप. ओके, अगेन वी स्टार्ट A, B, C. Okay, we write all the value 50, 30, 220. Here it is 90, 45,
170, here it is 250, 200 and 50. Okay, now here allocations are here. Here it is 1, it is 2, it is 2, it is also 1, and here 2. Okay, these are the allocations. And what is your Dij? Dij is here, it is -5. Okay, all are here positive and here is positive. These Dij are negative. Okay, so we have to create a loop. Okay, हम लोग एक लूप जनरेट करने वाले, तो यहाँ से हम लोग एक लूप स्टार्ट करेंगे. ओके, सो हमने यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ पे गए और वापस आ गए. ओके, सो वी क्रिएट अ क्लोज लूप. ओके, जहाँ से हमने लूप स्टार्ट की है वहाँ पे साइन करनी है पॉजिटिव की. फिर नेक्स्ट जहाँ पे मोड आता है वहाँ पे नेक्स्ट साइन होगी नेगेटिव की. उसके बाद जहाँ पे नेक्स्ट मोड होगा, जहाँ पे लूप टर्न होगी, वहाँ पे फिर से प्लस माइनस और फिर से यहाँ पे प्लस. ओके, ऐसे एक लूप जनरेट की हमने. अंडरस्टैंड? ओके, नाउ यहाँ पे देखना है, देयर आर टू सेल्स हैविंग नेगेटिव sign. Okay, this and this. First one has allocations. First cell allocation is 1 and second cell allocation is 2. ओके, यहाँ पे 1 का एलोकेशन है, यहाँ पे 2 का एलोकेशन है. तो दोनों में से मिनिमम कौन सा है? ये 1 वाला. ओके, सो वी हैव टू टेक minimum allocation in negative sign cell. जितने भी नेगेटिव साइन सेल आते हैं, हमें लूप जब जनरेट करते हैं और फिर प्लस माइनस का साइन करते हैं, वहाँ पे जितने भी नेगेटिव साइन वाली सेल है वहाँ से हमें जो मोस्ट नेगेटिव है, मीन्स सबसे छोटा जो वैल्यू है वो हमें सिलेक्ट करना है. यहाँ पे 1 है तो हमने 1 सिलेक्ट कर दिया. ओके, अभी क्या करना है, नेगेटिव साइन वाली सेल में से ये जो वैल्यू मीन्स यहाँ पे है डेट इज इक्वल टू 1. ओके, 1 वैल्यू. सो वी हैव टू एड दिस 1 इन प्लस पॉजिटिव साइन सेल एंड subtract this 1 from negative sign सेल. ओके, सो जहाँ पे भी नेगेटिव साइन वाला सेल है, सो यहाँ पे हम 2 है अलोकेशन, सो हमें 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है. तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ से हमें 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 1 - 1 हो जाएगा 0. यहाँ पे हमें 1 ऐड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1 3. यहाँ पे भी एक भी अलोकेशन ही नहीं है, तो 0 होगा, तो 0 + 1 1. सो the next table is, rewrite the table. We get A, B, C, this is 1 2 3. okay, 50 30 220 90 45 170 250 250. ओके, यहाँ ये सेल में लूप नहीं है तो यहाँ पे अलोकेशन से वो एज इट इज रखते हैं. ये साइन में आपका नहीं है सेल, लूप नहीं है, तो यहाँ पे अलोकेशन से एज इट इज रखते हैं. यहाँ पे अलोकेशन में चेंजेस करने हैं, तो किस तरह से चेंजेस करने हैं, तो जहाँ पे भी प्लस साइन वाला सेल है वहाँ पे प्लस ऐड कर देते हैं. तो यहाँ पे प्लस साइन वाला सेल है तो हम लोग +1 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे एक अलोकेशन आ जाएगा +1 का. दूसरा प्लस साइन कहाँ पे है? यहाँ पे है. यहाँ पे अलोकेशन कितना है? 2. तो हम लोग 2 में एक ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3. तो यहाँ पे अलोकेशन करेंगे हम लोग 3 का. वैसे यहाँ पे अलोकेशन है 1 का, लेकिन यहाँ पे साइन किसकी है? माइनस की. तो जो अलोकेशन है माइनस, उसमें से हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0. सो देयर आर नो अलोकेशन इन दिस सेल, सो वी डोंट राइट एनीथिंग इन दिस सेल. नाउ यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे अलोकेशन 2, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो वी राइट हियर 1. ओके, दिस इज अवर रिवाइज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन.
ओके, नाउ अगेन वी फाइंड, अभी हमने जो ये सॉल्व किया है वो आपका ऑप्टिमल है कि नहीं है वो चेक करने के लिए फिर से हम लोग फाइंड करेंगे यू आई और वी जे। ओके, और उसके बाद फाइंड करेंगे डी आई जे। अगर आपका डी आई जे ग्रेटर देन 0 आ गया देन स्टॉप देयर। अगर एक भी डी आई जे लेस देन 0 है तो अगेन वी हैव टू क्रिएट अ लूप। ओके, सो वी फाइंड द यू आई जे, यू आई। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जितने भी ऑन ऑक्यूपाइड सेल है वो लेते हैं 1 2 3 4 5। ओके, हम लोग डायरेक्ट यू आई यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो 50 यहाँ पे 0 लेंगे क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोकेशन से 50 माइनस 0 50, 90 माइनस 0 90, 250 माइनस 0 250। ओके, अभी इसका ये दोनों का यूज करके यहाँ पे लिखेंगे 50 माइनस 250 कितना आएगा माइनस 200, 200 माइनस 250 माइनस 50। ओके, नाउ ये सबका फाइंड करके हम लोग डी आई जे लिखने वाला वो नीचे कॉर्नर में लिखेंगे, डी आई जे फॉर अनऑक्यूपाइड सेल। नाउ वी फाइंड डी आई जे फॉर अनऑक्यूपाइड, ओके, अनऑक्यूपाइड सेल। तो कौन से अनऑक्यूपाइड सेल है, ये और ये। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डी आई जे फाइंड करने वाला है। 50 माइनस 50 0, 30 माइनस 0 0। यहाँ पे फाइंड करेंगे 50 माइनस 200। ओके, 50 माइनस 200 कितना आएगा। ओके, यहाँ पे करते हैं 220 माइनस 50 माइनस 200। ओके, सो 220 माइनस 50 माइनस मीन्स माइनस 150, तो वो कितना होगा 0 2 प्लस 5 7 एंड 3, सो प्लस 370। फिर यहाँ पे जाएंगे 90 माइनस 200 कितना होगा माइनस 110, 170 माइनस 110 इज 280 विच इज ऑल्सो पॉजिटिव। एंड हियर 90 माइनस 50 प्लस 40, 40 माइनस 45 प्लस 5। ओके, हियर इट इज 45 माइनस 90 माइनस दिस 50, so it is 45 minus 40, so it is plus 5. It means all Dij means VCE are greater than or equal to 0. Okay, hence our current solution is optimal. Understand? And the transportation cost is 50 into 1 plus 90 into 3 plus 250 into 1 plus 45 into 5 sorry 45 is not available, so 200 into 1 plus 50 into 2, that is equal to 870 rupees. And your IBFS is, what is your IBFS? Your IBFS means initial basic feasible solution x11 equal to 1, फिर x21 equal to 3, x31 equal to 1, x32 equal to 1 and x33 equal to 2. Okay, this is our final answer and the Mordi method.